स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स। अगड़ बम 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 लहरी। अगड़ बम तो अगड़ तंत्र पे हम बात करेंगे आज। अगड़ तंत्र क्या है और भारतीय आयुर्वेद वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार अगड़ तंत्र का इस्तेमाल करती थी, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगड़ इज वन ऑफ द 8 ब्रांचेज इनटू व्हिच आयुर्वेदा मेडिसिन इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड. Literally, Gada means disease and Agad means any agent which makes the body free from disease. However, the term Agad is used specifically for the branch of medicine dealing with toxicology. The description of the different types of poisons and their antidotes. Agad Tantra is defined as a section of toxicology that deals with food poisoning, snake bites, dog bites, insect bites, etc. The school of toxicology was founded and expounded upon by Kashyap, also known as Vriddha Kashyap, a temporary of Atriya Punarvasu. He lived in Taxila in what is now Pakistan. His text was called the Kashyap Samhita. This, however, is a different book than the Kashyap Samhita of pediatrics. This text is not available now, but the reference of this text are found mentioned in different commentaries. Some other texts written by Alambayana, Usana, Sonk, and Lotana were known to exist. However, except for reference to them, the original texts are no longer available. The traditional practice of toxicology is still practiced by different families of Vishyavedas, poison doctors, who specialized in toxicology. However, their knowledge is limited compared to the knowledge possessed by their earlier Ayurvedic physicians. In ancient time, it was the job of Vishyavedas to protect members of the royal families from being poisoned as well as the poison enemies of the king. तो ये था अगड़ तंत्र और किस तरह से अगड़ तंत्र को आयुर्वेद इस्तेमाल करता था। अगड़ तंत्र, अब इस बात की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन अगड़ का क्या मतलब है आज तक तो मुझे नहीं पता था। व्हाट मीन बाय अगड़? अगड़ बम 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 बम, तो शिव से संबंधित है अगड़, शिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। और अगड़ का मतलब आज समझ में आया है, शिव पॉइजन के देवता हैं, गले में नाग है, अगर नाग उनको डसता भी है तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर मंथन से निकला हुआ विष शिव पी जाते हैं, ऐसा भी हमें पता है। और शिव हैं वो अनेक तरह के विष हैं, उनका सोपान करते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है, जहर को जहर मारता है, जहर को जहर काटता है। तो देखिए आयुर्वेद वायरस को किस तरह से नियंत्रित करता था या वायरस के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता था। ये है स्मॉल पॉक्स या छोटी माता, जो आज की बीमारियों से कहीं ज़्यादा भयंकर पेंडेमिक बनकर उभरी थी और बहुत से लोग इसमें मारे गए, बहुत से लोग वर्षों तक इसके शिकार रहे और अपने स्कार्स, अपने मार्क्स ये हर आदमी के ऊपर छोड़ जाती थी। तो आयुर्वेद इसे किस तरह से ट्रीट करता है, इसमें रेफरेंसेस भी हैं, अलग अलग प्रकार की रिसर्च भी हैं, तो देखिए किस तरह से ट्रीट करता है। An interesting insight on the Ayurvedic treatment of smallpox which preceded the germ theory of disease that arose in the 19th century. The first reliable account of inoculation is found in the 18th century reports by British doctors concerning the Indian treatment of smallpox. In the method, believed to have been discovered sometimes before AD 1000 in India, Henderson and Moss 1999, one deliberately inoculated either into the skin or by nasal insufflation scabs or pustular materials from lesions of patients. This resulted in an infection that was usually less severe than an infection acquired naturally. From India, the practice separate to China. ये कहानी कौन बता रहा है? दो अंग्रेज, हैंडरसन एंड मोस, जिन्होंने 1999 में एक पेपर पब्लिश किया, इस तरह से एक शोध पत्र पब्लिश किया। तो इसमें क्या होता था कि जो अगड़ तंत्र है उसमें विश्व वैद्य जो भारतीय आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते थे, आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे, वो जो लेजेंड्स हैं, घाव या किसी तरह की पस
या नेजल इन्फ्लेशन, जो भी चीज़ें उनको ऐसे मिलती थी, उसको इन्फेक्ट करते थे स्किन के अंदर या फोर आर्म्स के अंदर इस तरह से। और वो इन्फेक्शन प्राकृतिक रूप से जो वायरस से इन्फेक्शन होता था उससे कहीं कम सीवियर होता था, ऐसा बोलते हैं हेंडरसन एंड मोस। तो अगर तंत्र में एक भारतीय विश्व वैद्य एक रोगी के शरीर से निकले हुए विष, यानी कि उसके घावों से निकली हुई पस, लेजेंस से निकली हुई पस को इस्तेमाल करते थे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। पहले किसी नुकीली चीज़ कांटों या कांटों के गुच्छे की सहायता से पंक्चर किया जाता था। जब तक पंक्चर किया जाता था तब तक उससे खून नहीं निकलता था। और उसके बाद क्या किया जाता था कि जो लेजेंस, जो पस किसी रोगी से मिली है, उसको उस घाव के ऊपर लगा दिया जाता था। पहले स्किन को गंगाजल की सहायता से साफ किया जाता था। इस गंगाजल का इस्तेमाल स्किन को पंक्चर करने से पहले ही किया जाता था। अब आप देख सकते हैं शिव और गंगा का भी सीधा संबंध है। It appears that the idea of inoculation derived from both Agartantra, one of the 8 branches of traditional Ayurveda, Indian medicine that deals with poison and toxins in small doses, and from the application of specific concoctions to punctures in the skins for treatment of certain skin diseases. Sasart Samhita in Chikitsa Sansthan 9.10 section. The Charak Samhita speaks of how deadly poisons can be antagonistic to each other. जहर को जहर मारता है. The Samhita speak of organisms that circulate in the blood, mucus and vulgum. Vata, Pitta, Kapha. In particular, the organism in the blood that cause disease are said to be invisible. Chapter 54 of Uttar Tantra or Kaya Chikitsa Tantra, General Medicine, suggested treatment regime that include avoidance of fatty foods and sweets. In chapter 5 of Nidan Shastra, Diagnosis, it is indicated that physical contact and sharing the same air can cause such disease to separate. Later in chapter 13 mentions the eruptive boils of the disease, Masurika. It appears that it originally meant chickenpox, but by 12th century the term was also being used for smallpox. As in the case of the commentator Dalhana, the best source concerning the Indian method of treatment of smallpox is, we will discuss further. लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यही तरीका या इससे मिलता जुलता, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता तरीका एडवर्ड जीनर ने इस्तेमाल किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए। उन्होंने काउ पॉक्स के लेजेंस से पस ली थी और उस पस को इनोकुलेट किया था स्किन में, जो हेल्दी पीपल थे उनकी स्किन में, और उनको चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो एक बात तो सर्तियाह तय है कि हमारे पास इस तरह की चीज़ों का ट्रीटमेंट था, लेकिन किसने एक हाथ में पुस्तक लेकर उन तमाम लाइब्रेरियों को ये कहते हुए जला दिया कि क्या इस पुस्तक में वो चीज़ नहीं है जो इन लाइब्रेरियों में है। लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। आज उन लोगों से पूछा जा सकता है कि उस पुस्तक में इस बीमारी का कोई इलाज है, क्या वायरस को ट्रीट कर सकती है वो पुस्तक, या आपकी किस सोच ने उन इतनी बड़ी बड़ी तक्षशिला या नालंदा की लाइब्रेरियों को जला दिया। आज हमारे पास वो साहित्य नहीं है। तो ये एक अलग विषय है, बड़ा ही दुखद विषय है। ज्ञान को किस तरह से तहस नहस किया गया, हमारे पारंपरिक ज्ञान को किस तरह से बदला गया, तो ये आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हमारे पास वो सारी किताबें होती, वो सारी चीज़ें होती, तो शायद आज हमारे पास इन सभी वायरसेस का ट्रीटमेंट भी होता। तो ये देखिए, मैं टमाटर के साथ इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। जब तक इसमें से पस नहीं के खून के जैसे बूंदें नहीं निकल आती हैं तब तक वो इसमें सुइयाँ चुभोते थे या सूल या जो भी कांटे हैं वो चुभोते थे। इसके अलावा शिव को जो
दिखाया गया है उसकी भी मैंने थोड़ी परिकल्पना की है। तो हम अभी पुनः चर्चा करते हैं वायरस के ऊपर ही। इसी अनुसंधान में ये भी दावा किया गया, द बेस्ट सोर्स concerning the Indian method of treatment of smallpox is a report by Dr. John Jed Holwell in 1767 for the College of Physicians in London. This report is an excellent source for understanding the mind of the Ayurvedic doctors of the 18th century. Holwell says that inoculators, अब 17वीं शताब्दी में होलवेल अपनी आंखों देखी बताते हैं, आर डेलीगेट्स फॉर दिस सर्विस फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ बिंदुबुंद, वृंदावन, एलियाबस, इलाहाबाद, बनारस and over all the distant provinces, diving themselves into small parties of 3 or 4 each. They plan their traveling circuits in such wise as to arrive at the places of their respective destination some week before the usual return of the disease. One would presume that they were Ayurvedic Vedas or their assistants. They inoculate indifferently on any part, but it left to their choice. They prefer the outside of the arm, midway between the wrist and the elbow for the males, and the same between the elbow and the shoulder for the females. Previous to the operation, the operator takes a piece of cloth in his hand, which become his prerequisite if the family is opulent, and with it gives a dry friction upon the part intended for inoculation for the space of 8 or 10 minutes. Then with a small instrument he wants by many slight touches about the compass of a silver groat, just making the smallest appearance of blood, then opening a linen double rag which he moistens with 2 or 3 drops of the Ganges water and applies it on the wound, fixing it on with a slight bandage and ordering it to remain on for 6 hours without being moved. Then the bandage to be taken off and the plate to remain until it falls off itself. The cotton which he preserves in a double calico rag is saturated with matter from the inoculated pustules of the preceding years. For they never inoculate with fresh matter nor with matter from the disease caught in the natural way, however distinct and mild the species. तो यहाँ होलवेल के अनुसंधान के अनुसार, या होलवेल ने जैसे देखा वैसा बताया कि जो इनोकुलेशन है वो 1 साल पुराना होता था, मरीजों के घाव से लिया जाता था, फ्रेश नहीं होता था, और उसके बाद जो घाव है उसके स्थान को गंगा जल की 2-3 ड्रॉप से साफ करके उसके अंदर इनोकुलेट किया जाता था। अब गजब की और बात है, वो भी देखिए। The patient was to abstain from fish, milk and ghee before and after inoculation for a period of 1 month. Holwell claimed that when the inoculation regime was strictly followed, it was next to a miracle to hear that it failed in 1 in a million. He added that since the practice of the East has been followed without variation and with uniform success from the remotest known times, it is but justice to conclude it must have been originally founded on the basis of rational principles and experiment. This is how Holwell described the explanations offered to him by Ayurvedic Vedas. शोध पत्र लिखते हैं हेंडरसन और मोस 1999 में, और आंखों देखी विवेचना करते हैं होलवेल, डॉक्टर होलवेल जो स्वयं पेशे से डॉक्टर हैं। और वैक्सीनेशन की खोज कौन करता है, एडवर्ड जिनर या आयुर्वेद, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप स्वयं देख लीजिएगा कौन करता है कौन नहीं करता है। तो ये था अगड़ तंत्र और किस तरह से हम
इस्तेमाल करते थे आयुर्वेद का, किस तरह से हमारे मनीषी, हमारे ऋषि आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। ये पूरा मैंने कहीं से खुद नहीं बनाया है, रेफरेंसेस भी हैं इसमें, साथ में रिसर्च भी है, लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। आप स्वयं भी सश्रुत संहिता और चरक संहिता इस तरह से देख सकते हैं, अगड़ तंत्र आप इस तरह से देख सकते हैं, और अगड़ तंत्र के बाद ही मेरे को पता चला कि अगड़ बम 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 का क्या मतलब होता है, किस तरह से शिव से संबंधित है ये अगड़ तंत्र। रही बात आज की स्थिति की, कोविड-19 की, तो इस बारे में अनुसंधान अभी जारी है। हमारे पास पुरानी पांडुलिपि होती, पुरानी पुस्तकें होती, तो शायद हम बहुत जल्दी कोविड-19 से निपट लेते। हमारी जो धरोहर है वो किसने जलाई, क्यों मौजूद नहीं है, ये आपके लिए अनुसंधान का विषय है। तो आयुर्वेद और वायरस के संबंध में आपको मेरी ये पड़ताल कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और प्लांट वायरसेस पे मैंने भी काफ़ी काम किया है, प्लांट वायरसेस को हम ठीक भी करते हैं, लेकिन प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस के जीनोम में काफ़ी अंतर होता है, और दूसरा गैप भी बहुत ज़्यादा होता है, इवोल्यूशनरी गैप, तो वो एनिमल वायरस के लिए कितना कारगर है कितना नहीं है नहीं कहा जा सकता। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।